afternoon, and welcome to EduSet Network. As you all know that we had a discussion on various media broadcasting and changes in broadcasting. So to continue this lecture from the past lecture, we will continue this lecture with the new changes in radio broadcasting. And today we are going to discuss on new changes in radio broadcasting. So to discuss this topic, we have Dr. Raghav Chari, who is an eminent professor in Indian Institute of Mass Communication for Radio and TV Journalism, and he will give you some suggestions or he will give you some new ideas or new developments which are taken place in radio broadcasting. So to discuss this topic, I welcome Dr. Chari in our studio. Thank you, Ankita. Thank you very much. As we all are aware that radio has the greatest reach. Yeah. It has been a very powerful medium. Or although television ke aane se, after in the 90s the explosion took place and a lot of television channels came, and after that actually radio went onto the back burner. Yeah. Thoda sa history recall kare to when we started introducing FM broadcasting 90s ke andar, तो when we started looking at the FM broadcasting 90-93 के करीब आसपास, वहाँ से फिर रेडियो का रिवाइवल शुरू हुआ, रिजुवनेशन शुरू हुआ. हम अब जबकि नई बातें करें कि what are the new changes which are coming now, we also let us look at how it has come about and why it has come about like that. The FM broadcasting actually is the new trend. Community radio stations is the new trend, and also how they are impacting the kind of genre of channels, किस प्रकार के नए channels आ रहे हैं और क्या नई तब्दीली आ रही है. These are the things which we need to talk about and discuss. Now first let us इन सब का जो key है, the whole entire thing focused on FM broadcasting. FM broadcasting, let us look at this slide. I said I brought out this slide, new trends in broadcast, and can we show this slide? Then we will look at it this way. See, in this, I have tried to explain to you popularity of FM broadcasting, and FM is a powerful entertainer. Because can we show this slide? We have this in this place. If you, I don't know, for some technical reason we are not able to see the slides, but I can tell you what is there in the slide. The slide के अंदर हमने दिखाया कि FM broadcasting at the moment, आज के ज़माने में, it's a yes, the slide is there. The FM is a very powerful entertainer. सिर्फ हम एक entertainment के माध्यम में ही FM को जानते हैं, क्योंकि सारे channels are broadcasting only music. उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है. और also FM के अंदर जिस प्रकार की सूचना या information आ रही है, वो भी it's all infotainment. It has to be entertaining. FM broadcasting और आकाशवाणी बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, because not only because FM broadcasting started with All India Radio, but also now जितने भी private channels बने, एक policy बनी है, उसके अंदर जो नए channels जो आए हैं, वो सब और latest policy which is going to come, उसके अंदर भी आकाशवाणी से news broadcasting जो है, that is likely to be shown or likely to be heard on private channels also. This is a new development which is going to take place. And finally, of course, empowering of radio broadcasting with community radio. The government is deciding to set up a large number of community radio stations also. And under the new policy, government is introducing or licensing a large number of FM broadcasting stations, which all will provide us with young people with a lot of jobs, opportunities, and creative working in the radio environment. And then the new trends are also there, which is like radio is coming online. There are a lot of radio stations which are coming up online. Radio, Akashvani and other FM channels are also present online, and the web radio is also coming up. So these are the new developments which are taking place. Now let us individually look at each one of them. How are they functioning and what is happening in that? Just before that, let us take a brief quick look at how it has developed. Now let us look at this slide again. In this slide, I would like to show you that the popularity of FM or broadcasting, because FM radio is a clear radio and it provides you with a lot of
म्यूजिक विच कैन बी हर्ड मच मोर क्लियरली दैन पुराना AM रेडियो से बहुत ज़्यादा अच्छा, शॉर्ट वेव रेडियो से ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसी तरह FM रेडियो हमारे यहाँ पे 93-98 में शुरू हुआ था, जबकि इट वाज ऑन पिगी बैकिंग ऑन ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी के FM रेडियो के अंदर थोड़े से टाइम जो है टाइम्स FM को दिया गया, HMV को दिया गया, उस तरह मिड डे को दिया गया। सो ऑल दिस चैनल्स, पीपल हु वांटेड टू गो ऑन FM, दे वर गिवन अ फ्यू आवर्स, हर हफ्ते में बहुत 30 से 40 घंटे उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिए जाते थे। और हर जो टाइम्स FM हो या कोई और मिड डे हो या HMV हो, मतलब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये जो टेलीविज़न चैनल्स थे, ये जो रेडियो चैनल्स थे, FM रेडियो चैनल्स, वो they were licensed for 1 year and the contract was renewed every year. This became very, very popular. When it became very popular, then there was some problem between the government and the FM broadcasters who are making a lot of money, advertising became very powerful. The FM started growing big way, so they introduced in 1999 2000 सन के अंदर हमने पहला ओपन डोर पॉलिसी शुरू किया। सरकार की नई पॉलिसी अनाउंस हुई, which said that let us now privatize FM radio broadcasting. This was airwaves are free. इस बात के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 99-2000 के अंदर रेडियो को, FM ब्रॉडकास्टिंग को प्राइवेटाइज करने के लिए वी हैव लाइसेंस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ रेडियो स्टेशन, बल्कि 108 रेडियो स्टेशंस की लाइसेंसिंग जो थी वो अनाउंस की गई, ऑक्शन किए गए। पूरी की पॉलिसी ज़्यादा ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ के उसके अंदर ऑक्शन के अंदर खूब लाइसेंस फीस भरे और उसको ऑक्शन में उसको अनरियलिस्टिक वे में उनको मतलब लाइसेंस वगैरह कराए, तो विच लेड टू द होल पॉलिसी नॉट टेकिंग ऑफ इन अ बिग वे. So 108 radio stations did not take place, did not happen, and eventually some 30-40 radio stations happened, and today we have about 250 FM radio stations on air, going on air, and that too not because of the first policy which built up huge enormous licensing fee वगैरह था, तो उसको रिवाइज करना पड़ा गवर्नमेंट को. आज से 5 साल पहले लगभग 2005 और 6 के अंदर we had a new policy, FM policy 2, phase 2 वाली पॉलिसी थी, जहाँ पर उन्होंने नई नीति बनाई कि let us have FM broadcasting stations not on that unrealistic इतनी बड़ी बड़ी लाइसेंस फी 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ लाइसेंस फीस को हटाकर उन्होंने नई पॉलिसी बनाई. वो कहा कि इसको जो है हम एक वन टाइम एंट्री, लाइफ टाइम एंट्री फी ऑफ 1/4 द रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर लेंगे, या 4% जो है 4% ऑफ द रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू कमाते हैं एफएम चैनल्स, लेट अस शेयर अबाउट 4% ऑफ द रेवेन्यू. इस तरह के नया पॉलिसी बनाने के बाद फिर एफएम रेडियो पनपा. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेशंस केम अप, and you know the big brands were there, and they're all some of the groups have 30 to 40 radio stations, 50 radio stations also. उन्होंने अपने अपने रेडियो स्टेशन all over India, there are about 250 odd radio stations, and ये सारे रेडियो stations जो हैं they are now doing very well and they are commercially viable, and you all know. but सिर्फ एक ही बात थी कि वो जो FM ब्रॉडकास्टिंग के जो ट्रेंड है वो सिर्फ म्यूजिक से ही या एंटरटेनमेंट से ही सीमित रहा. इट इज़ नॉट ड्रॉन इन टू अदर एरियाज. और जॉनर क्या हो सकते हैं, किस प्रकार के चैनल्स बन सकते हैं, दुनिया भर में किस प्रकार के चैनल्स हैं, वो ट्रेंड अभी हिंदुस्तान में नहीं आ पाया. उसके लिए अब एक नया प्रयास चल रहा है. अभी पिछले लास्ट 2-3 हफ्ते पहले ही कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एक फेज़ 3 FM ब्रॉडकास्टिंग के लिए. जो अभी कैबिनेट अप्रूवल तो हो गया है, अभी इम्प्लीमेंट अनाउंसमेंट करना बाकी है. जैसे हम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर फेज़ 3 की अप्रूवल आ गया है, और 800 से लेकर 900 FM स्टेशनों को लाइसेंस दी जाएगी, और इतने सारे रेडियो स्टेशन जब खुलेंगे तो लगभग 80% इंडिया को कवरेज मिलेगा FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का. और आप ये मान के चलिए कि ये जो रेडियो स्टेशंस हैं ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन टाउन्स या बड़े बड़े शहरों में नहीं, या मिडिल लेवल टाउन्स में भी नहीं, C and D कैटेगरी के जो छोटे से छोटे शहरों में भी ये पहुंच जाएंगे. अब ये छोटे से छोटे शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वहाँ पे,
क्रिएटिव टैलेंट पनपेगा और किस प्रकार के नए तरह के कार्यक्रम कंटेंट वगैरह बनेगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरू हो जाएंगे. This is going to be a new trend in the FM broadcasting which is going to happen. Now, at the moment you look at this slide again, इसके अंदर FM ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हमने कहा म्यूज़िक चैनल्स ज़्यादातर चैनल जो है म्यूज़िक चैनल्स हैं, और वो भी निश चैनल्स हैं, और सारे लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं. कुछ चैनल्स रोबस्ट पंजाबी म्यूज़िक है, कुछ मतलब केरला में मलयालम चैनल्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस चैनल्स हैं, यहाँ दिल्ली में भी हिंदी चैनल्स हैं. तो वो जैसे मतलब कुछ लोगों ने बिल्कुल अपना आइडेंटिटी बना के लिए इवन द फ्रीक्वेंसी जो मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उन्होंने भी कहा है 93.5 को कहते हैं 93.5, यानी 93.5 का मतलब है कि एक पंजाबी चैनल है, रोबस्ट पंजाबी म्यूज़िक आता है. तो उस तरह उन्होंने अपना एक निश और आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है. सिमिलरली 24/7 इंडियन लैंग्वेजेस और हिंदी में चलने वाले ये चैनल जो है कंटेम्प्रेरी अर्बन ओरिएंटेड हैं. कुछ मतलब जैसे FM गोल्ड और FM रेनबो हैं आकाशवाणी के, वो भी जो हैं दे आर गिविंग द ब्रॉडकास्टिंग लाइक नया म्यूज़िक, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक, और कुछ पुराने म्यूज़िक, ओल्डीज़ या गोल्डन एज की पुराने मतलब क्लासिकल सॉन्ग्स वगैरह, उस तरह के म्यूज़िक भी दिया जा रहा है. कुछ थोड़े से इंग्लिश म्यूज़िक कई चैनलों में भी आ रहा है, जिसके अंदर फोक म्यूज़िक, कंट्री म्यूज़िक, इस प्रकार के कई चीज़ें इसमें आ रही हैं. अब नाउ लुक एट दिस अगेन. इस होल बिजनेस के अंदर एक नया ट्रेंड जो है, ये FM रेडियो जॉकीज का देयर राइजिंग टू पॉपुलैरिटी. दिस इज बिकम द की स्टोन ऑफ FM ब्रॉडकास्टिंग. अब देखिए कि दिस नॉट ओनली दैट बिजनेस, इंटरैक्टिव FM एंड द बिजनेस, बल्कि जो रेडियो जॉकीज वही चुने जा रहे हैं, एंड दे आर बीइंग पेड वेरी हेवीली, ह्यूज सैलरीज, लाखों में उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, और वो लोग जो हैं पूरा FM रेडियो का बिजनेस को भी देखते हैं. जैसे कि अब एक इंटरैक्टिव है, आप लोगों के इंटरैक्टिव ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन है, जो फ़ोन करते हैं ऑडियंस मोबाइल फ़ोन से, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं, SMS भेजते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं, वो करंट इश्यूज़ को लेके एक इंटरेस्टिंग छोटे छोटे गेम शोज़ की तरह करते हैं. ये तमाम चीज़ें जो हैं देर ऑल रेवेन्यू जनरेशन ओरिएंटेड. लाइक आपको याद होगा इंडियन आइडल जो कार्यक्रम था टेलीविज़न के अंदर, उसके अंदर एक हफ्ते के अंदर लगभग 25 करोड़ की आमदनी हुई थी. 25 crores was earned. It's a huge business. So all that money which you spend on SMS and mobile phone, all this is revenue generation for the FM broadcasting, and this is done by the radio jockeys who know how to entertain, how to interact, and of course advertising का अपना role है, a very important role, and which is now capturing the market. FM radio broadcasters are capturing a lot of market. Finally, you also see utilitarian capsules. आजकल FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत से इंफॉर्मेशन, मतलब न्यूज़ नहीं, ट्रैफिक इंफॉर्मेशन हो गया, कहाँ से मतलब सड़कें बंद हैं, ख़राब है, या फिर पानी की समस्या है तो पानी कब उपलब्ध होगा, क्या पानी कब नहीं उपलब्ध होगा, या वेदर तापमान कैसे रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, वेदर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी जो लेके संपर्क करते हैं. तो इस तरह की यूटिलिटेरियन इंफॉर्मेशन कैप्सूल्स जो हैं वो भी एक अपने कार्यक्रमों के अंदर जोड़े रखते हैं ये लोग. तो इस तरह जो कार्यक्रम बनते हैं FM के अंदर एक नया ट्रेंड बन चुका है. एक मैंने देखा था कि जैसे मैंने कुछ आइडियाज़ मैंने कुछ लोगों को दिए FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा. जैसे कि अब सब्जियों के दाम कहाँ पे आजकल मार्केट में कितने हैं कितने नहीं हैं, कहाँ सस्ती सब्जियाँ मिल रही हैं, कहाँ कौन से मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन भी आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है. So this is another new trend which is happening in the thing. Of course, apart from of course short game shows, आपको एक म्यूज़िक दिखा दिया गया और म्यूज़िक सुना दिया गया और आपको पूछा गया कि कोई क्या उसका मतलब वो किसका गाया हुआ है, या इसके लिरिक्स किसने गाए हैं, या म्यूज़िक किसने दिया. इस तरह के छोटे छोटे गेम्स भी जो हैं वो इंटरेस्टिंग वे में ये जॉकीज़, रेडियो जॉक जिसको कहते हैं आजकल रेडियो जॉक, उसको बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. और बहुत से तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर इन रेडियो जॉक्स की ट्रेनिंग भी होती है.
और पहले तो ये कहा जाता था कि भाई जिसकी एक बहुत अच्छी आवाज़ हो, गंभीर आवाज़ हो, आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है, उस तरह की आवाज़ चाहिए। लेकिन आजकल वो बात नहीं है। आजकल तो लोग जो हैं मतलब आम आवाज़, अपनी आवाज़ को, जो भी आपकी आवाज़ है उसको अच्छा मतलब बेस्ट पोटेंशियल आपका उभरे उसे, मतलब यदि आपकी 80% आपकी आवाज़ की ओरिजिनल एफिशिएंसी और क्वालिटी जो है बाहर निकल के आए, दैट इट सेल्फ इज़ अ पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग टूल। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे मैंने अभी इस ट्रेन दिखाया कि ट्रेनिंग ऑफ रेडियो जॉकी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रेनिंग दे रही हैं आजकल। आपकी वॉइस जो है उस जैसी भी अच्छी वॉइस, अपनी ओरिजिनल वॉइस को, उसके अंदर पोटेंशियल, उसकी 80% पोटेंशियल को बाहर निकाले। दैट इज़ द ट्रेनिंग, जहाँ पे उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन और आपका पिच, आपके टोन, आपका टोनल वैल्यूज़, ये सब तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। भारतीय जनसंचार संस्थान जहाँ से मैं आता हूँ, हम भी ये लोग कुछ प्रकार के ट्रेनिंग करते हैं और अलग जगह की जगह पे भी ये ट्रेनिंग होती है। उसी तरह प्रोग्राम ट्रेनिंग, एक रेडियो जॉक जो है उसको एक प्रोग्राम किस प्रकार बनाने हैं उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जॉकी सिर्फ आवाज़ से ही नहीं जीते हैं, उनकी प्रोग्राम्स आइडियाज़ भी होते हैं। और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग टेक्स प्लेस इज़ ओनली ऑन टेक्नोलॉजी। आजकल के रेडियो स्टेशन यदि आप देखेंगे, एफएम रेडियो स्टेशन, जिसके अंदर किस प्रकार मतलब कंप्यूटरों का यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, किस प्रकार गानों को मतलब या म्यूज़िक को या प्रोग्राम के डाटा को, एडवर्टाइजमेंट को, उसको रिट्रीव कैसे करना, फाइल्स कैसे ढूंढना। आपको यदि कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो आप इस रेडियो स्टेशन में काम नहीं कर सकते। lot of young people are fully familiar with computers and they are able to know understand the technology। और आपके जो मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरएक्टिविटी हो रही है, वो एसएमएस पे हो रही, एसएमएस मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, या फेसबुक के मतलब मैसेजेस आ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप उसको प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं उसको। दैट इज़ द न्यू ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग एंड द रेडियो जॉकीज आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय दैट। Not only jockeys, the producers, the program planners, all those people are there. They get involved very seriously into the program making. That's the most important thing which is happening at the moment. And yet another thing is, of course, all the radio jocks and producers of FM radio broadcasting, they also have to look at the music clock. Music clock का मतलब है कि किस प्रकार, किस तरह वो प्रोग्राम्स जो हैं आपके बनते रहेंगे और किस प्रकार के प्रोग्राम्स आप कब ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसकी क्या ऑडियंस की रिसेप्शन क्या रहेगी, और ऑडियंस किस प्रकार उसको रिसीव करते हैं उन प्रोग्राम्स को, और किस समय पे किस प्रकार के ऑडियंस कैसे प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं। ये सब एक म्यूज़िक, और किस प्रकार का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, सुबह किस प्रकार का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, दोपहर को किस प्रकार का, शाम को किस प्रकार, थके हुए मंदे आते हुए गाड़ी में चलते हुए कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं, या रात को लीजरली कौन सा म्यूज़िक सुनते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इसको एक म्यूज़िक क्लॉक कहा जाता है। और उस म्यूज़िक क्लॉक को बनाने में हर एक अपना रेडियो स्टेशन एक अपना एक इंडिविजुअलिटी बनाने के अंदर, एक अपनी आइडेंटिटी बनाने में सक्षम रहता है। उसी तरह रेडियो जॉकीज़ जो हैं पर्सनैलिटीज़ को इंटरव्यूज़ करते हैं, उनका साक्षात्कार किस प्रकार हो, हाउ डू यू इंटरव्यू अ पर्सनैलिटी, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, दिस हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू मस्ट यू आस्क, जिसके लिए आपको व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज यू हैव, लाइफ स्टाइल्स के बारे में, पर्सन के बारे में रिसर्च चाहिए आपको, और उनकी मतलब लोगों के साथ किस प्रकार उनका एक एंटरटेनिंग एस्पेक्ट और इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट, और एक मॉडल्स और रोल मॉडल्स को भी किस प्रकार हम आपको इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार। दीज आर द टेक्निक्स विच आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द रेडियो जॉकीज व्हेन दे गेट इनटू द काइंड ऑफ jobs which are being given. These are also the new kind of trends which are emerging, and इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फिर भी थोड़ा मोनोटोनस होता जा रहा है. वाई इज इट बिकमिंग मोनोटोनस? इट्स बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम many of the FM channels they are start to look like they are also broadcasting या उसी तरह का म्यूज़िक चलाया जा रहा है. और रेडियो जॉकीज़ भी कुछ पॉपुलर जॉकीज़ हैं, लेकिन गाने वही आते हैं, या तो नए गाने होते हैं या पुराने गाने होते हैं. इसके अलावा हिट्स, कोई चैनल हिट्स गाने चलाता है और कहता है कि, और उसी पे खेलते रहते हैं कि वी दे कीप प्लेइंग ऑन वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ ए म्यूजिक जो नो. बट देन इस सब चीज़ को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट हैज़ नाउ कम विद दिस थर्ड फेज ऑफ पॉलिसी के अंदर उन्होंने दे आर सेइंग दैट हम वी आर गोइंग टू अलाउ न्यूज़ ऑल्सो.
अपार्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, हम खबरें भी, ये प्राइवेट चैनल जो लाइसेंस नए चैनल लाइसेंस लेंगे उनको खबरें ब्रॉडकास्ट करने की भी लाइसेंस दी जाएगी. When you say there will be that FM broadcasters will be allowed to broadcast news, to begin with, they can only broadcast news from All India Radio. All India Radio will prepare news capsules and they will give it to these channels, and this all FM channels can take that for a certain, probably maybe a certain fees or whatever, minimal, and for that can be broadcast. That will give the channel FM broadcaster a new look. Music plus information plus news, khabrein. So the channels can look a little different, and right from down to the smallest village से लेके बड़े-बड़े शहरों तक you can get this kind of thing. Now आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, ग्लोबली किस प्रकार के नए-नए चैनल्स अभी चलते हैं वहाँ पे, किस प्रकार के ब्रॉडकास्टिंग होती है, और हिंदुस्तान में भी उस डायरेक्शन में या उस दिशा में हम चल रहे हैं. Just take a look at this channel genre. ग्लोबली यदि आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स भी एक एफएम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक चैनल, पूरा स्पोर्ट्स का ही चैनल होता है जहाँ दिस इज़ पॉसिबल, और पूरे न्यूज़ का ही चैनल्स हो सकते हैं. जैसे आकाशवाणी के नए न्यूज़ के चैनल्स हैं, उसी तरह का प्राइवेट चैनल्स यदि न्यूज़ बना सकते हैं. अब म्यूज़िक चैनल्स तो हैं ही. टॉक रेडियो या चैट रेडियो, टॉक रेडियो यानी किसी समस्याओं को लेके, महिलाओं को लेके, जैसे अपने मियाओ रेडियो है, सिर्फ म्यूज़िक महिलाओं के लिए बजाता है, उस प्रकार एक रेडियो के इश्यूज़ को लेकर, मतलब कई तो चैनल्स ऐसे हैं कि पेट्स, ये पालतू जानवरों के लिए एक चैनल बना हुआ है, जो मतलब बिल्ली, कुत्ते वगैरह जो पालतू हैं उनको किस प्रकार उनका देख रेख कैसा रखा जाए, उनको कैसा बीमारियों से बचाया जाए, उस तरह का रेडियो चैनल्स भी हैं. चैट रेडियो स्टेशंस भी हैं. ट्रैफिक और वेदर के अपने अलग रेडियो स्टेशंस हैं. एथनिक चैनल्स, मतलब किसी कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, किसी एरिया के कुछ बंगालीज़ हैं या तमिलियंस हैं या तेलुगुज़ हैं, गुजरातीज़ हैं, तो उनके लिए अपने एथनिक चैनल्स बन सकते हैं. या इन सब के एक मिश्रण भी हो सकता है, जो चैनल्स जो है कहते हैं कि एक मिडल ऑफ द रोड चैनल, जो मतलब मिक्स्ड काइंड ऑफ बहुत सारी जिन कैटेगरियों का एक मिश्रण बनाकर वो अपना ही एक चैनल शुरू कर सकते हैं, कॉम्बो चैनल शुरू कर सकते हैं. अब दीज आर द वेरियस चैनल जॉनर, मतलब अलग अलग टाइप के चैनल्स हैं जिनकी पोटेंशियल है, और ये इस तरह के चैनल बन सकते हैं. और इन चैनल्स को लेकर हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी आने वाले समय में ये ट्रेंड बन चुका है कि किस प्रकार चैनल्स जो हैं एक अपनी आइडेंटिटी बनाएं, और इतने सारे चैनल्स जो हैं, दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ ए ट्रेंड विच इज़ लाइकली टू emerge. And these are the kind of channels which are now going to come up. तो इसमें ख़ास तौर पे अभी हम देख रहे हैं कि अगले कुछ महीने में, मे बी एक आध 2 महीने में, ये नया ट्रेंड जो है एफएम ब्रॉडकास्टर्स के अंदर नई खबरें आने लगेंगी. तो ये किस प्रकार की खबरें आने लगेंगी? क्या ये जो खबरें हैं ये आकाशवाणी की वही खबरें, मतलब यदि एफएम रेडियो ब्रॉडकास्ट में जाएंगी, तो हो सकता है कि उस तरह की खबरें ज़्यादा पॉपुलर ना हो, या मतलब उनको लोग इतना ज़्यादा, मतलब आकाशवाणी में तो सुनते ही हैं कि, लेकिन एफएम नए प्राइवेट चैनल्स के अंदर किस प्रकार की खबरें आनी चाहिए, इसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है आजकल, और बहुत सोच विचार हो रहा है. आकाशवाणी में भी सोच विचार हो रहा है, और प्राइवेट चैनल्स में भी सोच विचार हो रहा है कि किस प्रकार हम एक समाचार को एक नया रूप दें, और एक नया मतलब उसको आयाम दें, ताकि लोग जो हैं उससे जुड़े रहें, और उनके अंदर एक इंटरेस्ट बना रहे ये चैनल्स के अंदर कि पहली बात तो यह है कि एक एफएम ब्रॉडकास्टर जो है प्रांतीय होता है, इससे लोकल चैनल. यदि एक छोटा सी शहर है, जो बहुत ही छोटा शहर है, वहाँ की यदि खबरें हैं, तो उस खबरों को यदि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ओबामा की डेट पॉलिसी क्या है, उससे क्या लेना देना. दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन कि अमेरिका की डेट पॉलिसी क्या है, या चाइना ज़ियानजांग प्रोविंस के अंदर किस प्रकार ऑयल्स को पाइपलाइन लगा रहा है, या उसकी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है. इन तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता. तो मोस्टली जो चैनल्स होंगे वो उनकी प्रासंगिकता जो है वो लोकल एरिया पे, वहाँ के इश्यूज़, वहाँ के मुद्दे क्या, मतलब किस प्रकार का एक नई सड़क बन रही है, या ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का कुछ विकास
के लिए किस प्रकार के सरकार से मदद मिल रही है, या लोकल के लिए लोग क्या कर रहे हैं, या अपने एक हेल्थ रीजंस को लेकर किस प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, या आमदनी के लिए, न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए किस प्रकार विषय बनाए जा रहे हैं, या मार्केट लोकल उपजाऊ सब्जियों के लिए कहाँ अच्छे मार्केट हो सकते हैं, कहाँ मतलब लोग जो हैं कमाई अच्छी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके लिए बहुत ही प्रासंगिक होंगी और बहुत ही रेलेवेंट होंगी। और दीज आर द इश्यूज विच आर गोइंग टू बी ब्रॉडकास्ट, डिस्कस्ड। दिस इज द काइंड ऑफ ए न्यूज़ विच इज़ लाइकली टू गो ऑन द एयर इन दैट पर्टिकुलर चैनल्स। जैसे मैं पहले कह रहा था कि इसी देयर वाज वन अमेरिका के अंदर, टेक्सास के अंदर, जब एक बार मैं आई वाज वेंट फॉर वहाँ पे मतलब इंटर्नशिप एंड लर्निंग प्रोसेस, एक टेलीविजन चैनल चलते चलते चैनल के अंदर बीच में सडनली एक ग्रीन ग्रोसर आ गया, यानी जो सब्जी बेचने वाला। क्या कहा गया कि भाई ये सब्जियां जो हैं, आज इतनी सारी सब्जियां इस ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई हैं, ये सस्ती हैं, ये महंगी हैं, इनकी प्राइस ये है, और इसका सारे लोग उसको इतनी ध्यान से देख रहे थे। वजह क्योंकि अमेरिका में एक जैसी सोसाइटी है उनकी, उस सोसाइटी के अंदर हस्बैंड वाइफ जो मतलब पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं, और शाम को आते वक्त सब्जियां जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से सब्जियां खरीदते हैं, तो उनको डिसाइड करने में बहुत ही कोई विलम्ब नहीं होता, और फटाफट वो क्योंकि ये कार्यक्रम देखा होता है, एक ग्रीन ग्रोसर क्या बताता है आज के दिन में क्या क्या सब्जियां किस प्रकार के रेट्स हैं, कहाँ से आई हुई हैं, कौन सी फ्रेश हैं, कौन सी नहीं है, तो वो उसको खरीदने में बड़ा आसान होती है। और इसके लिए बहुत सी, अब यहाँ पे भी परिस्थितियाँ वैसे ही चल रही हैं। शहरों में आप देखते हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल गए हैं जहाँ सब्जियाँ बेची जाती हैं, और हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों भी कार्यरहित हैं तो और काम करते हैं, तो नेचुरली यहाँ पर भी वो परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, एक उदाहरण जो मैंने दिया वो काफ़ी कामयाब होने की दिशा में है। तो कंटेंट, एक मतलब किस प्रकार का कंटेंट इस रेडियो स्टेशन की खबरों में होनी चाहिए या इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, वो ट्रेंड जो है आजकल देखने में आ रहा है। और ये जो बाहर पाश्चात्य देशों, विकसित देशों में जो हुआ है, दैट ऑल्सो इज कमिंग बैक हियर एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। ऑफ कोर्स देयर इज ऑल्सो a promise by government in the third phase of broadcasting policy, FM policy, उसमें ये कहा गया है कि नेटवर्किंग भी दिया जाएगा, नेटवर्किंग अलाउ किया जाएगा। यदि एक ग्रुप है, उसके 30 या 40 स्टेशंस हैं, उनको जोड़ने की, आपस में जुड़ने की भी प्रावधान रहेगा। So which would mean that many of these people interconnected relevant information can be exchanged, programming become more economical, and the station becomes more viable. So these are some of the new trends which are likely to happen. And then also किस प्रकार की प्रस्तुति रहेगी, what is the kind of a new trend which is coming up for broadcasting of these stations. So that is going to be another very very interesting area. अभी तक हमारे यहाँ पे सिर्फ म्यूज़िक प्रेजेंटर्स हैं, रेडियो जॉक्स हमने बात करी है, अब हमने न्यूज़ एंकर्स की बात नहीं की। टेलीविज़न चैनल्स में तो हम देख रहे हैं एंकर्स क्या करते हैं, लेकिन एफएम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर न्यूज़ एंकर्स और इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग जो हैं, एंकर्स जो होंगे, वो किस प्रकार काम करेंगे, और हाउ विल दे अट्रैक्ट द ऑडियंस एंड इन्वॉल्व द ऑडियंस, हाउ विल दे मेक इट वेरी पॉपुलर। तो इसके समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई हैव सीन इन कोलंबो रेडियो, जो कि बहुत ही पॉपुलर रेडियो है, रेडियो स्टेशन के अंदर, हालांकि श्रीलंका छोटी सी देश है, लेकिन हमें, आप लोगों को याद होगा, बिनाका गीत माला के समय से, अमीन सियानी के समय से रेडियो सिलोन बहुत ही पॉपुलर था, एंड इट वॉज अ वेरी एंड स्टिल इज़ अ वेरी पॉपुलर रेडियो स्टेशन। यदि आप सुनेंगे एफएम रेडियो स्टेशंस की, वहाँ पर किस प्रकार प्रस्तुति होती है या प्रेजेंटेशन किस प्रकार करते हैं खबरों का, तो दैट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव रेडियो स्टेशन, विच वुड मीन एक रेडियो स्टेशन जो सुबह खबरें देता है, खबरें का बुलेटिन देता है, उसके अंदर एक खबर को लेकर कि राष्ट्रपति की जो कुछ अनाउंसमेंट है, तो उसको लेकर थोड़ी देर से वो एक किसी यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी की कैंटीन के अंदर जो लोग स्टूडेंट छात्राएँ बैठी हुई हैं, मतलब स्टूडेंट्स, एंड दे पुट अ रिपोर्टर देयर एंड दे ट्राई टू इंटरैक्ट विद दैट कि what are the students thinking about the policy which was announced by the government yesterday. Then they will talk to the professors. Then they will also put a reporter on the street and talk to a person on the road waiting at a bus stop,
what does the person think about that particular policy. So in a matter of a few minutes, they will link up the whole city and different sections of people. Everybody is discussing, and the news anchor is moderating the whole discussion into the entire society. So this looks fantastic. It's an involvement of the entire people on that issue, and the debate goes on, and which will be controlled by the anchor for some time, after some time. So this is the kind of a new trend of interactive radio broadcasting which is taking place in FM radio broadcasting. And these trends will be seen, probably we will in this country also, and हमारे देश के अंदर भी जो FM रेडियो स्टेशंस हैं इस प्रकार के लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और they will get a lot of response. And people, when they interact with the radio station, they also will become more involved and become more participatory in this kind of a broadcasting. This is a new trend which in fact we have implemented at IIMC on our community radio, that we have interactive radio station where people are like in health program, for example, what in the recent times when there was a lot of dengue fever or viral fever is happening, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि we try to link up a place called Rangpuri near our जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पास, जो हमारा एक छोटा सा वो है, और बेरसराय नदर मुनीर का लोगों से एक एंकर जो है फील्ड के लोगों से जोड़कर किस प्रकार समस्याएं हो रही हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ ए न्यू इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटरी रेडियो विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. सिमिलरली देर आल्सो गोइंग टू बी मोर ऑफ रिपोर्टेड ओवर स्टोरीज. बाहर से, जैसे आप देखते हैं टेलीविज़न में, बाहर क्षेत्र से जहाँ से घटना घटी न्यूज़ को वहीं से रिपोर्टरों से जोड़ना, आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग, ये तमाम चीज़ें, वॉइस ओवर्स, किस दूर से मतलब एक करस्पॉन्डेंट की वॉइस, दीज आर द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जिससे एक रेडियो समाचार जो नए जो एफएम ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो न्यूज़ होगा उसको किस प्रकार पॉपुलर किया जाएगा. दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी important new development which is going to take place. And this is one area about the FM radio broadcasting which we have discussed, which is going to be very very popular. Similarly, even in C and D group towns, मतलब जो मतलब बिल्कुल शहर जहाँ 10-20 हज़ार की फैमिलीज़ की शहर हैं, उनसे भी छोटे छोटे यदि हम ग्रामीण क्षेत्र को भी ले लें, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो नया ट्रेंड जो चल रहा है रेडियो का, उसमें कम्युनिटी रेडियो का लाइसेंसिंग जो है वो दिए जाने की प्रपोजल है, जो मतलब कुछ हज़ारों में स्मॉल रेडियो स्टेशंस एंड दे आर लाइक टू बी लाइसेंस, बट दीज आर नॉट गोइंग टू बी कमर्शियल रेडियो स्टेशंस. They are more for, they're not like FM radio stations which are, they can earn a lot of advertising revenue. Community radio stations can also can survive by earning a limited amount of licensing, what do you call, advertising fee generate कर सकते हैं, और they are more for actually community participation to empower the people. This is the new concept of community radio, which are at the moment are only given to a few universities and few NGOs, but broadly they are going to be licensing a large number of community radio stations in villages to NGOs and also local population. And these radio stations licensed will be able to involve the community in airing their problems, grievances, and also trying to find out solutions by the community itself. मतलब एक community आपस में बैठ कर किस प्रकार अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है, अपनी समस्याओं को एयर कर सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है. These are the new trends of community radio broadcasting. And finally, of course, we also will see, we have seen how it is growing. The other side, there is also a decline रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर. जैसे वर्ल्ड स्पेस रेडियो बहुत ही धूमधाम से चला था, एक जिसके अंदर सारे दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस आपको सैटेलाइट के ज़रिए ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, एंड इट वाज कॉल्ड वर्ल्ड स्पेस रेडियो. वो रेडियो स्टेशन कुछ हद तक चल पड़ा, लेकिन इट फाइनली कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट वेरी वेरी यूज़फुल. क्योंकि उसके लिए बाहर आपको एक एंटेना की ज़रूरत थी, और वो एक ही फिक्स जगह पे रखना पड़ता था, और उसकी रॉयल्टीज़ और लाइसेंसिंग फ़ीस का बहुत ज़्यादा थी. तो ये तमाम चीज़ों से उलझा हुआ प्रॉब्लम्स के साथ
वर्ल्ड स्पेस रेडियो जो है फाइनली इट क्लोज डाउन इन इंडिया एंड इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, बट दैट हैज़ नॉट हैपन. बट द इशू ऑफ रॉयल्टीज़ जो हैं वो भी मतलब नए रेडियो स्टेशन के अंदर जहाँ कंटेंट जनरेशन होगा इस वक्त हाल मतलब एट द मोमेंट जिस प्रकार म्यूज़िक का इस्तेमाल हो रहा है, मेरे को लगता है कि शायद आकाशवाणी जो सरकारी रेडियो स्टेशन है या ऑटोनमस है, मतलब although it is autonomous but it is supported by government, so this radio station is able to provide a lot of royalties. But many of the people who are in the private radio stations, there are big stations of course do provide royalties to the music singers and all these owners, but there is also many stations which avoid providing the kind of royalties which are to be provided for people who are folk music artists and other kind of less known people in the industry, music industry. They may not be getting all that what they deserve actually. This is not happening. Now we also would like to finally look at, I would like to talk to you about what is happening in the new area of the web technology on internet radio broadcasting. In the internet radio broadcasting, it is also popular. It's becoming a lot of. In fact, if you look at All India Radio itself is on what do you call internet, newsonair.com, जहाँ की आप पुरानी खबरें भी इसको लिखते हैं. The greatest advantage of internet radio is this, that you can always हम कहते हैं कि बहुत बड़ी रेडियो की कैरेक्टरिस्टिक है या विशेषताएं हैं, वो ये है कि रेडियो को आप क्षणिक मानते हैं. इट कम्स एंड यू हियर एंड इट गोज, यू कांट रिकॉल. एक खबरें आपने सुनी आज तो 2 मिनट वो एक कान से सुन ली और दूसरे कान से निकल गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं आपके पास. जबकि अखबार को आप खोल के देखते हैं तो यू कैन ऑलवेज उस अखबार को दोबारा देख सकते हो. उस खबर को रेडियो के अंदर जो सुनी हुई खबरें हैं उनको आप दोबारा नहीं देख सकते हो, ना सुन सकते हो. लेकिन ये बात अब नहीं है. अब आकाशवाणी ने ऑनलाइन नेट पे जो है उसका रखा है, बुलेटिन्स हैं, तो आप कभी भी एक क्लिक ऑफ ए बटन कंप्यूटर के आप जा सकते हो कि पुरानी खबरें, कल की बुलेटिन में क्या कहा गया था, परसों की बुलेटिन में क्या कहा गया था. तो इस तरह आप बहुत से बुलेटिन्स भी सुन सकते हो. और सामयिकी कार्यक्रम है, जैसे उनके अंदर क्या डिस्कशंस हुआ, यदि आपने मिस कर लिया तो कोई बात नहीं, आप जाकर अगेन नेट से उसको निकाल कर दोबारा सुन सकते हो. दिस इज़ बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर विद द यंगर जनरेशन हु प्रॉबली आर नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. वो सुन नहीं पा रहे होंगे रेडियो स्टेशन को, लेकिन वो नेट पे जाकर ये तमाम चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं. उसके अलावा नेट रेडियो के अंदर यदि आपने उसके अंदर हाइपर लिंक्स भी हैं आपके, और वो हाइपर लिंक्स की वजह से आप जो है एक जो कुछ कार्यक्रम, कुछ रिलेटेड इश्यूज़ भी सुनना चाहते हैं, उनको उनका गहन करना चाहते हैं, तो यू कैन क्लिक एट अ बटन. यू कैन ऑल्सो यूज़ द हाइपर लिंक्स and connect them up and finally get all that kind of a program is possible on the net. So net is becoming a very very powerful and potential tool for broadcasting. Particularly it is catering to the younger generation, and this younger generation also is becoming very very interactive. The radio stations जो आने वाले समय में होंगे those will be probably more interactive than the live broadcasters, because live broadcasters are putting out or making the agenda of the program, जबकि on web or on the internet the agenda is made by the people, not the people will try and set the agenda and not the station. So this will become more interesting development, and how it will get the new people, lots of people involved into a particular broadcasting. इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज भी है कि यू लुक एट द, जैसे आप लोग रेडियो स्टेशन के अंदर आप ए पर्टिकुलर चीज़ सुनना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है आप स्पोर्ट्स सुनना चाहते हैं या पर्टिकुलरली किसी लोकल इशू के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट क्लिक दैट एट द बटन, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम और दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम एंड कैन एन्जॉय इट. And so it is like multiple choice kind of a programming can happen on internet. So that is also the advantage of the net.
So this is a new kind of a radio trend, broadcasting trend which is taking place, and that is becoming very very popular with the young people. इसको मैं ये कहता हूँ कि there are two types of technologies. One is laid back and one is lean forward. सॉरी एक लीन बैक और एक लीन फॉरवर्ड. यानी लीन बैक टेक्नोलॉजी वो है जो रेडियो स्टेशन आप पीछे बैठ के आराम से मेरी उम्र के लोग सुन सकते हैं, और यंगर जनरेशन आजकल जो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ उसको क्लिक करके लीन फॉरवर्ड करके रेडियो स्टेशन को सुनता है. द वेरी प्रोसेस वो जो सुन रहे हैं वो भी इंटरैक्टिव बन जाता है उनके लिए. सो दैट इज़ अ न्यू डिफरेंस विच इज़ हैपनिंग in radio broadcasting. These are the trends of which are happening in the radio broadcasting technique, and we also need to develop new skills, and क्योंकि नए तरीके के skills की आवश्यकता है, नए तरीके की language की आवश्यकता है. All this will be required for the broadcasters of the future generation. And so we have touched a lot of generalized a lot of areas. We looked at how the government itself नई पॉलिसियाँ लेके आ रही है for making FM ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग को बहुत पॉपुलर बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए. दूसरी बात यह है कि हमने देखा कि किस प्रकार FM ब्रॉडकास्टिंग की पूरी नज़रिया बदल रहा है और किस प्रकार का उनका कंटेंट बदल रहा है और किस प्रकार के मतलब जो है अलग अलग जॉनरे ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो बन रहे हैं. नए नए तरीके के स्टेशन किस प्रकार बनेंगे. और FM ब्रॉडकास्टिंग तो आज तक नहीं हुआ नई बात वो ये कि खबरों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, समाचार न्यूज़ बुलेटिन्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. ये तमाम चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं और किस प्रकार नए इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स एंड आर्ट विल बी डेवलप्ड. दिस इज टू बी सीन, एंड आई थिंक वी कैन नाउ आस्क द लिसनर्स, so any students who are listening to this program, if they want to ask any questions. Yeah, but before that I want to ask some questions. Like sir, आपने लेक्चर में आपने बताया था कि निश चैनल्स, सर इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी जो कि हमारे लिसनर्स आराम से सुन सकेंगे और समझ सकेंगे कि निश जो वर्ड है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? अंकिता, निश का मतलब होता है कि एक छोटा सा मतलब घोंसला या छोटा सा मतलब एक एरिया जिसको अपना बनाया जाए जी. तो एक निश जो है एक छोटा सा कॉर्नर है जिस कॉर्नर में बैठ के, यानी यदि आप एक रेडियो स्टेशन कहता है कि मैं म्यूजिक चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहा हूँ, जैसे सारे तरह तरह के म्यूजिक चैनल्स एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, मगर हम लोग जो है सिर्फ उस एक पुराने 70 और 80 में जो फिल्में आई हैं सिर्फ वही पुराने वाले गाने हम बजाएंगे अपने स्टेशन में. तो एक निश हो गया, एक कॉर्नर हो गया जहाँ लोग सुनना चाहेंगे 70 और 80 में किस प्रकार के गाने आते थे, फिल्मी गाने आते थे, उसको सुना देंगे, वो इनका निश हो गया. कुछ कहेंगे कि भाई हम बिल्कुल पुराने टाइप के है ही नहीं लोग, हम तो बिल्कुल नए ज़माने के लोग हैं, हम सिर्फ जो है पिछले 5 साल से यदि गाना जो यदि पिछले 5 साल से पहले का है हम उसको नहीं बजाएंगे. तो वो एक उनका निश है कि वो एक बिल्कुल ही नए ज़माने के लोग हैं, नए गाने ही सुनना चाहेंगे, चाहे मुन्नी हो या शीला हो, तो उसी तरह के गाना सुनना चाहेंगे. तो उसी तरह के अलग अलग निश गाने जो है निश चैनल्स बनते हैं. तो अब कुछ चैनल्स, अब इसको हम थोड़ा बड़ा एक्सपैंड भी करें तो उसके अंदर ये होगा कि भाई अब स्पोर्ट्स का एक निश बन सकता है छोटा सा, और उसमें भी क्रिकेट का एक चैनल, मतलब चैनल जो है क्रिकेट देगा, वो भी एक निश हो सकता है. तो उसी तरह मतलब कुछ जो है एक चैनल जो सिर्फ बंगाली लोगों के लिए है वो भी एक निश चैनल हो सकता है, गुजरातियों के लिए, तेलुगु तमिलियन के लिए. सर तो क्या हम इसको निश को हम कैटेगराइज रेडियो चैनल में हम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये अब क्योंकि यदि वो निश ना बनाए तो एक चैनल और दूसरे चैनल में फर्क ही नहीं आएगा. अब जैसे मतलब एक सिटी है, एफएम है, मिर्ची है, रेड एफएम है, अलग अलग जैसे चैनल्स हैं, बिग एफएम है, तो ये सब में कैसे मतलब आप फर्क कैसे करेंगे? तो फर्क करने के लिए उनको अपना एक निश बनाना पड़ेगा. जी सर, जैसे कि मीडिया के लिए एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ऑफ इनकम है, तो सर रेडियो में भी क्या ये है? बिल्कुल. जैसे अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि एक रेडियो स्टेशन जितना लाइसेंस फी देता है वो उसकी मतलब बैलेंस शीट यदि आप देखोगे जितना पैसा लाइसेंस में खर्च कर रहा है उतना ही पैसा वो अपने रेडियो को चलाने में 1-1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1-1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक के
एक्सपेंडिचर करता है, वो खर्चा आता है उसके अंदर, तो वो आमदनी कहाँ से आएगी, वो कैसे किस प्रकार के उनके लोगों को पैसे मतलब अपने तनख्वाहें कैसे, ये सब, तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग से पैसा आता है। रेडियो एडवर्टाइजिंग हालांकि टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की निस्बत कम है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग से आता है। और एडवर्टाइजिंग एक जगह है, और दूसरा अभी हमारे यहाँ पे जो है लाइसेंसिंग फीस नहीं है जैसे जैसे इंग्लैंड वगैरह में है, लेकिन एक और जरिया रेवेन्यू कमाने का, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फोन्स और एसएमएस, तो इनसे भी रेवेन्यू आता है, क्योंकि इन रेडियो स्टेशनों का अपना लिंकेज होता है कि वो टेलीफोन इंडस्ट्री से, सर्विस प्रोवाइडरों से, कि आपका जो 5-6 रुपए का जो टेलीफोन जो आपको लगता है, जो स्पेशल कॉल्स जो होती हैं, उसको मोबाइल से आप अपने राय देते हैं या अपने गाने मांगते हैं या कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं, स्टेशन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो आपका कॉल फीस होता है उसका कुछ परसेंटेज जो है वो स्टेशन को भी आता है, तो ये भी एक रेवेन्यू, एक कमाई का जरिया है। उसी तरह एसएमएस जो भेजते हैं उसकी भी जो वो भी मतलब उसका भी रेवेन्यू जो है वो उस सर्विस प्रोवाइडर से इस फलाने चैनल का एफएम चैनल को प्राप्त होता है। दिस इज हाउ दे मेक मनी ऑल्सो। सर एक ऐसा मतलब क्या मैं ये जान सकती हूँ कि रेडियो प्रोडक्शन और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन दोनों में कितना हद तक सिमिलैरिटीज हैं और कितना डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल। एक टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए तो हमें एक नया कार्यक्रम की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आगे बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि टेलीविजन क्योंकि एक दृश्यों का मीडियम है, माध्यम है, तो उसकी अपनी एडवांटेजेस हैं, लेकिन टेलीविजन चैनल्स के अंदर जो और रेडियो के अंदर जो फ़र्क ये है, रेडियो की एडवांटेज ये है कि हम लोग एक रेडियो को जिस प्रकार हम एक कपड़े प्रेस करते हुए भी बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, यू नो, इट्स अ बैकग्राउंड मीडियम, सो बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल विल नॉट चेंज चैनल। यदि हम लोग यहाँ पे टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन में हम जब तक देख रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन यदि हमें उठ के जाना पड़ जाए हम तो उसको भूल जाएंगे, लेकिन रेडियो को नहीं भूलेंगे, रेडियो को तो सुनते रहेंगे हम, क्योंकि वो बैकग्राउंड मीडियम है। तो इसलिए रेडियो की एडवर्टाइजिंग जो है ज्यादा पावरफुल है, जहाँ छोटा सा मतलब, और उसकी लॉयल्टी लोगों की सुनने की ज्यादा रहती है, सो दैट इज व्हाई रेडियो एडवर्टाइजिंग हैज अ डिफरेंट एडवांटेज ओवर टेलीविजन एडवर्टाइजिंग आल्सो। जी, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। एक कॉल आई है महाराष्ट्र से। जी नमस्कार, आपका स्वागत है एडुसेट नेटवर्क में। हेलो हेलो। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हम कम्युनिटी रेडियो स्थापन करना चाहते हैं हमारे गांव में, इसलिए किसको? जी, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। कहाँ से जानकारी मिलेंगी? हाँ, यदि आपने, मैं समझ गया इनका प्रश्न था कि अपने गांव में एक रेडियो स्टेशन लगाना चाहते हैं, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है या एफएम रेडियो स्टेशन है। हमने 2 प्रकार की रेडियो स्टेशन की बात करी है। एफएम रेडियो स्टेशन तो आपको इंतजार करना पड़ेगा जब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी लाइसेंस के लिए, आपको मतलब उसका एडवर्टाइज होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, वो बड़े तौर पे पैमाने पे है। यदि छोटे तौर पे पैमाने पे यदि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का आपको लाइसेंस करना है, आप नेट पे जाइए, कम्युनिटी रेडियो टाइप करिए और गूगल सर्च में जो भी सर्च करेंगे तो आपका कम्युनिटी रेडियो का पूरा प्रावधान किस प्रकार का होगा वो सामने आ जाएगा। उसके अंदर सिर्फ कम्युनिटी रेडियो के अंदर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एप्लीकेशन या दरख्वास्त देनी पड़ती है, और वो दरख्वास्त देने के बाद आपको मतलब आप या कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई संस्थान है, या आप गांव में मतलब कुछ एक ग्रुप है जिसको मतलब शैक्षणिक ग्रुप हैं, तो इस प्रकार के यदि आप कोई भी उसको लेकर आपको कम्युनिटी रेडियो के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो कम्युनिटी रेडियो का अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन के बाद आपको कुछ क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री से, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से, वो क्लियरेंसेस लेने के बाद आप उसको, आपकी फीस बहुत कम होती है इस रेडियो स्टेशन की, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की, वो नामांकन सा होता है, उसमें 50,000 रुपये का सिक्योरिटी बॉन्ड भरवाते हैं वो, आपके पास बैंक गारंटी होनी चाहिए, 50,000 की बैंक गारंटी होनी चाहिए, और उसके बाद आप अपना रेडियो स्टेशन लगा सकते हैं। और ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है बहुत कम दाम पे लग जाते हैं। एक अब मैंने देखा है एक छोटा सा डब्बा जो है मतलब हाँ, उसी के वो खोल कर आप जो है उसी से प्रसारण भी शुरू कर सकते हैं।
तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। आप सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए और कम्युनिटी रेडियो को देखिए, वहाँ पूरा प्रावधान इसका उपलब्ध होगा। जी सर, इसी से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या कैंपस रेडियो कम्युनिटी रेडियो दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। कैंपस रेडियो का जो कॉन्सेप्ट है, जो कैंपस रेडियो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लगे होते हैं, बाहर के विकसित देशों में हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज के अंदर अपना कैंपस रेडियो होता है। जो स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र छात्राएं, वो अपना कार्यक्रम प्रसारण करते हैं उसको, और एक तकनीकी तौर पे रेडियो के प्रसारण को सीखने की प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में कैंपस रेडियोज नहीं है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो के नाम पे ही उनको लाइसेंस दिया गया है। लेकिन ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो हमने लाइसेंस दिए हैं, उनका मतलब है कि हम उस कार्यक्रम, उसके अंदर जो कार्यक्रम इस प्रकार के हों जो थोड़े पिछड़े लोगों के को भी ले, कम्युनिटी उसके अंदर, और साथ साथ इसको एक मिश्रण बना दिया है लोग, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, जो क्योंकि छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो उसको यूनिवर्सिटी, अपने संस्थान, कॉलेज वगैरह का अपने कार्यक्रमों का स्टूडेंट्स भी एक कम्युनिटी है। जी सर। तो उस तरह के कम्युनिटी को अपना, मतलब उनकी समस्याओं को भी थोड़ा समय देते हैं, और कुछ समय जो पिछले वर्गों को, पिछले लोग हैं, जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, पिछले लोग हैं, स्लम्स के लोग हैं, उनको भी दिया जाता है, ताकि वो वहाँ का कार्यक्रम भी मतलब बनाए और वहाँ के लोगों से पूछकर किस प्रकार की समस्याओं से जो वो अपना जूझ रहे हैं उसके बारे में। तो वो इस प्रकार ये रेडियो स्टेशन एक मिश्रण सा बन गया, कैंपस रेडियो प्लस कम्युनिटी रेडियो। जी सर, जैसे कि आपने बताया था कि आरजे बनने के लिए काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि आवाज़ अच्छी होना और ट्रांसलेशन कर आना और लैंग्वेज में पकड़ होना। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि पहले किसी ज़माने में बहुत गंभीर आवाज़ होती है, तभी मतलब आप रेडियो जॉकी बन, नहीं, आजकल ऐसे नहीं है। एक आम अच्छी नॉर्मल आवाज़ आपकी आवाज़ है, हर एक व्यक्ति की, हाँ मतलब कुछ बिल्कुल कोई डिफेक्ट ना हो, तो आवाज़, नॉर्मल आवाज़ ही आजकल कम्युनिटी रेडियो के अंदर ही चलती है। तो एक आम आदमी एक दूसरे आदमी से बात कर रहा है, उस तरह की आवाज़। लेकिन मैंने ये कहा था कि उसका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो है, उससे लोगों की जो आवाज़ है वो उस प्रकार ट्रेन किया जा सके, ताकि उसकी 80% पोटेंशियल जो है वो अच्छा उभर कर आए और वो अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कि उसी ट्रेनिंग के लिए सर आजकल ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल गए, जैसे 2 महीने का वर्कशॉप हो गया, या ऐसे 2 महीने में सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, तो क्या ऐसे कोर्सेज करे कोई आरजे बन सकता है? आप देखिए, मैं इसका कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता कि कौन सा संस्थान अच्छा, कौन सा संस्थान नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कुछ बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे भारतीय जनसंचार संस्थान है, जामिया मिलिया है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वहाँ यदि कोर्स चलाते हैं तो जाहिर है कि वो उसका एक मानकीकरण है और एक स्टैंडर्डाइजेशन है। लेकिन फ्लाई बाय नाइट जो कई दुकानें लोगों ने खोल रखी हैं, कहते हैं अपने नाम पे कि मैं ट्रेनिंग कर देता हूँ, ये ट्रेनिंग कर देती हूँ, तो वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ट्रेनिंग करके आप, क्योंकि इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। पहली बात तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि एक छात्राएं जो भी ट्रेनी है, जो इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको एक, जब तक बहुत ही ये सामान बहुत महंगा आता है, एक अच्छा स्पीकर के जरिए आप अपनी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपका आवाज़ कैसी है। एक छोटा वैसे किसी माइक्रोफोन या किसी स्पीकर के अंदर आप आवाज़ सुन लें तो वो ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार प्रशिक्षण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरी बात वो प्रोफेशनल्स चाहिए जो आपको ट्रेन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा रेडियो जॉकी है वो अच्छा ट्रेनर भी हो, वो शिक्षक भी हो। शिक्षक जो है कि ट्रेनर्स जो हैं वो अलग होते हैं और प्रैक्टिशनर्स अलग हैं। तो किसी संस्थान के अंदर अच्छे शिक्षक हों और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तभी आपको इसका जायज़ा लेकर तभी आप उसके अंदर ज्वाइन करें, क्योंकि वरना तो ये 1-2 महीने वाले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर सिर्फ आप पैसे ही गंवाएंगे और आपको मतलब कुछ प्राप्त नहीं होगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है, जैसे कि आपने बताया था कि नई नई पॉलिसीज़ आ गई हैं रेडियो ब्रॉडकास्ट में, सर इसमें ब्रॉडकास्टर्स कैसे इसमें काम कर सकते हैं? लाइक इसमें आप हेडलाइंस, आप न्यूज़ की बात कर रहे थे, तो वो कैसी पॉलिसीज़ हैं कि अब लाइक अब हम न्यूज़ भी सुन सकते हैं, वो क्या? हाँ बिल्कुल, ये कि अभी सरकार एक पहले उन्हें पहला पड़ाव रखा है कि जितने भी हम लाइसेंस देंगे 800-900 रेडियो स्टेशनों को, अभी मेरे ख्याल से अगले 1 महीने में सारे लाइसेंसेस हो जाएंगी और तमाम तब लगभग 1000 रेडियो स्टेशन होंगे, जिसके अंदर पहले उन्होंने कहा पहले कदम तो ये होगा कि ये आकाशवाणी से जो खबरें आ रही हैं उसका एक नया स्वरूप जो है वो उसको प्रसारण कर सकते हैं।
तो जब तक ये प्रसारण होता रहेगा उसके बाद ये प्रयास होगा कि ये स्टेशन जो है अपने एक नए तरीके के खबरें जो हैं ब्रॉडकास्ट करने, क्योंकि जब छोटे, जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे शहरों तक ये लाइसेंस मिल रहे हैं तो वहाँ लोकल जो इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं, लोकल खबरें हैं, वो उनसे ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे लोग, ना कि जैसे मैंने कहा कि ओबामा की आजकल क्या परिस्थिति प्रॉब्लम है सेनेट के साथ, या फिर डेविड कैमरून क्या कर रहे हैं अपने पार्लियामेंट में, उनसे ज़्यादा मतलब उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो है वो अपने लोकल रेडियो न्यूज़ वगैरह बनेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोकल रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, छोटे मोटे एडवर्टाइजर्स वहाँ पे काम करेंगे और छोटे स्टेशन अपना कमाई करेंगे, और उसके साथ साथ जो है और लोकल टैलेंट जो होगा और वो लोकल जो स्टूडेंट्स, यंग यूथ या युवा वर्ग पीढ़ी होगी, उनको नौकरियां मिलने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और वो न्यूज़ रिपोर्टर्स बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर्स बन सकते हैं, और न्यूज़ डायरेक्टर्स बन सकते हैं, एडिटर्स बन सकते हैं, और उसका कार्यक्रम भी मतलब सामयिक कार्यक्रमों का भी मतलब बनाने के लिए तो एक छोटा मोटे रेडियो स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रावधान बन सकता है, जिसके अंदर लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, क्या हम वायरलेस रेडियो को एमेच्योर रेडियो कह सकते हैं? नहीं, एमेच्योर रेडियो और एक चीज़ है, बिल्कुल ही अलग है, जिसको मतलब आप कहते हैं कि अब हैम रेडियो है, एक नया वो एक काफ़ी रेडियो चला है, वो एमेच्योर है, जो मतलब सिर्फ एक लोग जो है उसको एक क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे चलाते हैं, उसका अपना बहुत ही प्रामुख्यता है, उसकी काफ़ी प्रामुख्यता है, लोग उसको अपने हॉबी की तरह चलाते हैं, उसकी अलग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं लोगों के, एक हैम रेडियो क्लब बना हुआ है, तो वो लोग जो है अपने मतलब प्रसारण करते रहते हैं इस फ्रीक्वेंसी के अंदर, जहाँ आप कोई नई चीज़ें देखते हैं, वो एमेच्योर रेडियो है। वो एमेच्योर रेडियो कई बार जैसे कई घटना घट जाती है कि मतलब तहरीर स्क्वायर के अंदर, वहाँ के अंदर, या कोई मतलब जिस प्रकार पिछले दिनों अरब आंदोलन हुआ है, चाइना में आंदोलन हुआ, इस तमाम चीज़ों को वो एमेच्योर रेडियो वाले ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, वो पूरे दुनिया में वो घूमती रहती हैं खबरें। दैट इज डिफरेंट रेडियो, एंड वायरलेस रेडियो इज लाइक दैट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रेडियो तो खैर वायरलेस होता ही है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग होती है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो एक कम्युनिटी या हमने एक समुदाय के लिए स्थापित किया जाता है, समुदाय का पूरा भाग पार्टिसिपेट रहता है, समुदाय ही उसका एजेंडा बनाता है, समुदाय ही उसको डिसाइड करता है किस प्रकार का सूचना हो, किस प्रकार की एंटरटेनमेंट हो, किस प्रकार की एंटरटेनमेंट वो चाहते हैं, किस प्रकार के नाटक वगैरह जो भी उसके अंदर आने चाहिए, लोकल खबरें आनी चाहिए, वो सब चीज़ें समुदाय करता है। दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी रेडियो। एक एफएम रेडियो जो लागत पे एक अच्छा हायर लेवल पे एंटरटेन करने की करता है, या कोई अपनी निश, जैसे मैंने कहा चैनल्स होते हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, चैट शोज, पेट शोज, तो वो चीज़ें अलग है। दैट इज़ अ लिटिल हायर लेवल, और उसके अंदर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, उसकी लागत भी ज़्यादा होगी और कमाई भी ज़्यादा होगी। और बाकी आकाशवाणी जो रेडियो है वो तो है ही, और इसके अलावा वेब रेडियो एक अलग है, जिसके अंदर वेब रेडियो के अंदर कुछ एमेच्योर रेडियो भी बन सकते हैं। ओके जी सर, धन्यवाद आपके इस थैंक यू वेरी मच अंकिता, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जिसने आपकी वजह से ये लेक्चर इतना कामयाब हुआ है। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर SR शारी को, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिन्होंने बताया कि न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज़ की वजह से आज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में भी बहुत ही ज़्यादा तब्दीली आई हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबकी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।